Hello students, a very refreshing good morning to all. As you all know that last week we have just discussed about the Belgium as well as Sri Lanka, their comparative study that how each and every religions are being accommodated together. In the same manner, now we will proceed with three topics, that is power sharing, and the contents are why power sharing is desirable, means why there is need for power sharing. Second topic, that will be Khalil's dilemma. Just in this we are going to go through a story कि किस तरीके से हम डेमोक्रेसी में सभी धर्म के लोगों को, मीन्स हाउ ईच एंड एवरी रिलीजियस ग्रुप कैन बी अकोमोडेटेड. कोई भी राजनीति हो, कोई भी ग्रुप हो, उसमें अगर हम सभी को एक साथ, सभी समुदायों को एक साथ लेके चलते हैं, इफ ऑल टुगेदर एवरी कम्युनिटी इज टेकन टुगेदर, देन ओनली वी कैन सक्सीड, प्रोसीड फॉरवर्ड. Thirdly, that is forms of power sharing. So first of all, why power sharing is desirable, means why there is need to share the power. Basically, there are the two main reasons why power should be shared. Firstly, that is moral. Second, that is prudential. Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. It tries its best that how it can be done. So under this prudential reason, it reduces the possibility of conflicts between different social groups. Social conflicts lead to violence, political instability. कि अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे तो नेचुरल देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स आपस में हमारे लड़ाई झगड़े होंगे. Second, that is prevents groups from overstepping their rights to enhance their own power. It means totally it is a good way. क्यों? आपके पास अगर पहले से ही दिया हुआ है कि किसको क्या चीज़ अडॉप्ट करनी है, how they can share their power, naturally you will not cross your limits. Imposing the will of majority community. हमारे दिमाग में होता है अगर बहुमत में लोग होते हैं तो वो माइनॉरिटी ग्रुप को दबाएंगे, बट ऐसा नहीं है. विदाउट द सपोर्ट ऑफ माइनॉरिटी यू कैन नॉट प्रोसीड. देन इट इज़ नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट. हमारे दिमाग में ये होता है कि अगर मैं, हमारी मेजॉरिटी है, हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट बीइंग पॉसिबल. व्हेन पावर इज़ नॉट शेयर्ड इट ऑप्रेस द माइनॉरिटी इवन द मेजॉरिटी. अगर ऐसा ही होगा तो इट विल क्रिएट टेंशन अमंग वेरियस कम्युनिटी ग्रुप्स. सेकेंड, दैट इज डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड, कि क्यों होनी चाहिए. इट प्रोवाइड्स यू अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. हाउ दैट द गवर्नमेंट, इफ इट विल वर्क इन अ सिस्टम, अगर एक सिस्टम में चलेगा तो सभी सिटीजन्स को भी पता होगा दैट व्हाट दे हैव टू डू, in which manner they have to do. So it is the spirit of democracy, and in this the people who are affected by the policies must have a hand in sharing those policies. Then it is citizens participation is a must, that at every step you have to give regard to each and every individual, means हर नागरिक को आपको इम्पोर्टेंस देना होगा. Then moral reasons make power sharing essential and valuable. ये एक valuable है, क्यों? Because it is, as in democracy, it is a legitimate government. Legitimate government का मतलब होता है जहाँ हम कानून बनाते हैं और एक वो प्रोसीजर के थ्रू गवर्नमेंट वर्क करती है. Now let us call the first set of reasons, जो बच्चों मैंने आपको पहले पढ़ाया था, which I have explained you. It is called as the prudential, and the second one, that is moral. So while prudential reasons stress power sharing will bring out better outcomes. Why? Because moral reasons में हम सिर्फ सोच के चलते हैं, बट प्रूडेंशियल में क्या होता है, एवरीथिंग इज ऑथेंटिक. हर चीज़ एक सिस्टमाइज्ड मैनर में दिया हुआ होता है, एंड यू हैव टू वर्क फॉलो दोज रूल्स. आज इन दिस, ये एक छोटी सी कहानी है
that relates to Khalil Telima. In this, how various religious group of people, they work together. See, Vikram was driving the motorbike under a vow or silence and Vital was the pillion right. तो इसमें क्या है कि किस तरह से how this started. Through Khalil's dilemma, I will express my views regarding the community people, that how every community people should be accommodated together. Means अगर हम एक इंडिविजुअल रिलीजन को, समुदाय को हम प्रेफरेंस देंगे तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर. तो डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या है, दैट वी शुड ट्राई टू ट्रीट इक्वली एंड इन सोसाइटी ऑल्सो दे शुड गेट वन मैन वन वोट. जैसा कि स्टोरी में बताया गया था कि बेरूत के एक सिटी में वन मैन वॉज लिविंग जिसका नाम खलील था. उसके पेरेंट्स दे वर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी. फादर जो थे वो क्रिश्चियंस थे बट मदर वॉज मुस्लिम. दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी. लेकिन आगे चल के क्या हुआ, इस कम्युनिटी के ऊपर खलील के एक अंकल की को मार दिया जाता है, बट बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग टू एनी अदर रिलीजियस ग्रुप. एट द एंड ऑफ दिस वॉर, अब जब कोई लड़ाई होगी तो उसमें बहुत सारे इनोसेंट पीपल दे विल डाई. तो लेबनन लीडर्स दे डिसाइडेड कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन फ्यूचर देयर विल बी कम्युनल राइट्स. So they took a step, as earlier I explained you regarding Belgium, that how people were accommodated over there. Brussels साथ के साथ पूरी बेल्जियम कंट्री. In the same manner, इन्होंने क्या किया, अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप के those who were belonging to Catholic Christians, तो प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम कम्युनिटी में से बना दिए और मिनिस्टर्स को उन्होंने दूसरे ग्रुप में से. इससे क्या हुआ, दैट ईच एंड एवरी ग्रुप दे गॉट द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड. सो थ्रू दिस स्टोरी वी कम टू नो दैट हाउ डेमोक्रेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दैट इफ वी विल कम टुगेदर, इफ इलेक्शंस विल बी हेल्ड, इलेक्शन से क्या होगा, आप फोर्सफुली नहीं, इट इज टोटली अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द सिटीजन whom they prefer, कि वो अपनी प्रीशियस वोट किसे देंगे. वन मैन वन वोट. फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑन अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. एक बहुत लंबे टाइम के दैट हाउ द गवर्नमेंट्स पावर शुड बी क्लासिफाइड. ईदर इट शुड बी अंडर वन ग्रुप और इट शुड बी डिवाइडेड. बट दीज नोशंस हैव चेंज. क्यों चेंज हुए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में हम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पावर को पावर देंगे तो नेचुरली इट विल नॉट वर्क इन अ सिस्टमाइज मैनर. सो आवर डेमोक्रेसी टेल्स दैट हाउ वेरियस इंस्टीट्यूशंस शुड बी फॉर्म. कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें एक सिंगल नहीं, वी शुड जॉइन मेनी ऑफ द ग्रुप्स, कि किस तरह से हम लोगों को अपने पास ला के एंड दे कैन जस्ट try to choose the government who can rule the country in a systemized manner. So power sharing that plays a very important role, कि एक सरकार को चलाने के लिए हम किस तरह से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने लेवल्स में हम कर सकते हैं. सो फर्स्ट दैट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इट मीन्स ये एक हॉरिजॉन्टल है. इसमें आपका लेजिस्लेचर इट रिलेट्स टू लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाता है. एग्जीक्यूटिव जिसमें हमारी सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं. जुडिशरी में हमारी सारी लोकल से लेके मीन्स दैट इज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट. सो सच अ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ ऑर्गेनाइज, कि एक ऑर्गन मीन्स एक अकेला वर्क नहीं कर सकता. ऑल थ्री दे हैव टू डिपेंड ऑन ईच अदर. सो इफ इन दिस इट इज ऑल्सो separation ensures that none of organs can exercise unlimited powers, direct
इनडायरेक्टली आपको एक दूसरे पर ध्यान रखना है. ईच ऑर्गन चेक्स द ऑफर्स विच रिजल्ट्स इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस. मीन्स आप दूसरे पे निगाह रखोगे, क्योंकि एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद जुडिशरी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव. जब आप किसी को चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. सेकेंड, दैट रिलेट्स टू वर्टिकल लेवल. अब मैंने इससे पहले आपको बताया कि वो हॉरिजॉन्टल लेवल है जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. इन दिस इट रिलेट्स टू द central government, or you can call at the union government. Second, that is the state government, or you can call it the regional level. Third, that is the local government, or you can call it the district government. Earlier we were having only two levels, that was the central government and the state government. हमारे पास सिर्फ दो सरकारें थी, एक सेंट्रल, दूसरा स्टेट. लेकिन तीसरी हमारी क्यों? There was a demand of third level, third tier system, because for small decision, अगर विलेज में अगर कोई प्रॉब्लम है, you have to depend on the state government or the central government. So our constitution decided, our government decided that there should be the third level, कि अगर थर्ड लेवल होगा तो नेचुरली हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपनी स्मॉल लोकेलिटीज में वी कैन सॉल्व. इन दिस आई एम गिविंग यू the example of Belgium. As in Belgium, people, they give vote to their own religious group, which is called as the community government. और हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, ये सारे के सारे जो हैं आपके किस में आते हैं? लोकल गवर्नमेंट. थर्ड ये है हमारा दैट इट रिलेट्स बिटवीन द वेरियस सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप. इसमें हमने क्या नाम दिया है? कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम. इन सम कंट्रीज दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स कि जहाँ वीकर सेक्शंस और विमेंस को लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाए. जैसे मैं आपको बताऊंगी कि हमारी पंचायती सिस्टम में 1/3 सीट्स आर बीइंग रिजर्व फॉर विमेन, और वो अब हो भी रहा है. बट हमारी राज्यसभा, लोकसभा में अभी 1/3 सीट्स आर नॉट बीइंग, इट इज जस्ट इन पेंडिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, SCs and STs they should also get 1/3 allotted seats. इससे क्या होगा कि माइनॉरिटी ग्रुप they will be able to uplift themselves. They will not be ill treated in the society. अगर हम उन्हें पावर्स नहीं देंगे या हम उन्हें इसमें हमारी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे तो नेचुरली दे विल फील इल. पावर शेयरिंग इन आवर मॉडर्न डेमोक्रेसी, दैट इज पावर शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कॉन्टेंडर्स फॉर पावर. कि जब आप चूज करते हैं तो सिटीजन्स के पास राइट होता है कि वो किस कैंडिडेट को चूज करें. When there is competition, if there is competition, so what will? That power will not remain in the hand of one individual. And in this, they will be totally scared कि अगर तुम सही सिस्टम में नहीं करोगे तो नेचुरल आपकी गवर्नमेंट नहीं आएगी. Then in the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. अब एक कास्ट ग्रुप का अगर पॉलिटिकल लीडर खड़ा होता है तो वो हर जगह जाके अपनी कन्विंसिंग करता है दैट आई बिलोंग टू योर कास्ट, तो आप अपनी प्रीशियस वोट मुझे देना. अगर आप ऐसा करोगे तो नेचुरली वी विल हेल्प यू फॉर एवर. सो नेक्स्ट दैट इज कोलिशन. कोलिशन में आपका आता है कि कई बार क्या होता है, एक अकेली गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दे जॉइन हैंड विद एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, एंड व्हेन दे फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज कोलिशन पार्टी. Two examples I am giving you. One that is UPA. UPA that is United Progressive Alliance, जो कि कांग्रेस दूसरी पार्टी के साथ मिलकर जब बनाती है तो उसे बोलते हैं UPA. Another that is NDA. NDA when भाजपा पार्टी join their hands with any other political party. NDA that is National Democratic Alliance. Many interest groups like traders, businessmen, farmers, industrial workers also have a share in governmental.
अब इसमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर खड़ा होता है तो दे गेट द सपोर्ट ऑफ बिजनेस टू कंटेस्ट इलेक्शंस. वाई? क्योंकि वो अपना पैसा लगाते हैं और पैसा लगाएंगे तो नेचुरल सी बात है दैट दे विल ट्राई टू टेक मैक्सिमम वर्क फ्रॉम दी पॉलिटिकल लीडर्स कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो यू विल बी रिमूव फ्रॉम योर चेयर. So in this, they also will have a share in governmental committees or bringing influence on the decision making process. तो एक डेमोक्रेसी के लिए हमें सारी उनकी ज़रूरत पड़ती है. And in this manner, students, we have just completed our lesson.